اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے بھی جا کے یہ ویکسین پرچیز کر لیں تاکہ ہم جلد سے جلد اپنے لوگوں کو اس کورونا سے ہم بچاؤ کر سکیں. اچھا دوسری چیز میں بالکل واضح کر دوں, ویکسین لگنے کے بعد بھی آپ کو یہ پہننا پڑے گا, اس سے چھٹکارا نہیں ہونے کا, کیونکہ ویکسین جو ہے وہ آپ کو اس سے نہیں روکتی کہ آپ کسی اور کے اندر جراثیم جو ہے منتقل کریں. آپ کے اندر اگر کوئی جراثیم آ گیا ہے تو وہ جراثیم آپ منتقل ویکسین کے باوجود وہ انٹر کر سکتا ہے, لیکن آپ کو وہ سیف رکھے گی ویکسین, اس سے آپ کے زیادہ جو ہے مہلک بیماری آپ کو نہیں ہوگی, آپ ہسپتال تک نہیں پہنچنے کی نوبت آئے گی, لیکن تھوڑے بہت آپ کو سمٹمز ہو سکتے ہیں. ویکسین پوری طرح آپ کو بچاؤ نہیں دیتی, لیکن یہ کرتی ہے کہ آپ کی جو انفیکشن ہوگی وہ بالمقابل اس کے کہ جو نیچرل وائرس سے ویکسین ہو جائے گا, دوسرے جب اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو اس سے کم اثرات ہوں گے اس کے, اور آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا, ماسک سے چھٹکارا نہیں ملے گا, ہمیں پھر بھی ماسک پہننا پڑے گا, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ مر رہے ہیں, جو بتدریج بیماری کی وجہ سے لانگ ٹرم ان کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں, کوئی اپاہج ہو رہا ہے, کوئی ان کی قوت مدافعت ختم ہو رہی ہے, کس کے لنگس پھیپھڑے ختم ہو رہے ہیں, کس کی کڈنیز ختم ہو رہی ہیں, یہ جو اس کے مضر اثرات ہیں اس وائرس کے وہ نہیں ہوں گے, وہ ہونے سے ان سے بچاؤ ہو جائے گا اور اموات سے بچاؤ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے 2 ویکسین کا ذکر کیا کہ دونوں چائنیز ویکسین ہیں, اس کے علاوہ کیا صوبائی حکومت نے کسی اور کمپنی سے کسی اور ملک سے رابطہ کیا کہ وہ ویکسین آپ پریفیئر کر لیں؟ اور جو 2 ویکسینز کا یہاں پر ٹرائل ہوا ہے اس کمپنی سے آپ نے بات ہوئی کہ کتنا جو ہے اس کا فائدہ ہوا ہے, اس کو کوئی بات اس سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور میڈم یہ بتائیے کہ جو یو کے سے 5 لوگ آئے تھے جن کو یو کے والا وائرس تھا, وہ ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ بالکل صحیح ہے. یو کے کا وائرس جو تھا وہ ملک نہیں تھا. یو کے کا وائرس ہمیں پریشانی یہ تھی کہ پھیلاؤ اس میں زیادہ ہوگا, جتنا پھیلاؤ ہوگا اتنا لوگوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے, لیکن یہ اتنا مہلک نہیں تھا. ہم نے اس کے بہت کیئرفلی اس کے کانٹیکٹس جو تھے ان لوگوں کے ان کو ٹریک کیا ہے, ان کو آئسولیٹ کیا, اور اس وجہ سے اس کا یو کے کا وائرس پھیلا نہیں. وہی جو 3-4 لوگ جن کو تھا انہیں کو رہا. دوسری چیز میں یہ بتا دوں جو آپ ویکسین کے لیے کہہ رہے ہیں, اسپوتنک کی ویکسین ہے جو رشیا بنا رہا ہے, ہم مینوفیکچررز کے پاس نہیں پلیس آرڈر کر سکتے کیونکہ مینوفیکچررز نے آلریڈی جو پروکیورمنٹ کے آرڈرز دیگر ممالک ہیں انہوں نے کر چکے ہیں, انہوں نے 2 گنا اپنے سے زیادہ ویکسین منگا لی ہے, اور ممالک جو ہیں وہ انہوں نے سب نے پہلے سے پروکیورمنٹ کر لیا, آرڈرز پلیس کر دیے. ہم جو ہے اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی گورنمنٹس ٹو گورنمنٹ کریں, کہ ہم گورنمنٹ سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی جیسے چائنیز گورنمنٹ نے ان کی خود کی مینوفیکچرنگ ہے کہ سائنوفارم کی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں جو ویکسین وہ بنا رہے ہیں ان میں سے کچھ ہمیں دے دیں. دوسری جگہ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جا کے ان سے ہم رابطہ کریں جو ہمارے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر جنہوں نے آلریڈی آرڈر پلیس کر کے منگوا رہے ہیں وہ ویکسین, ان سے ہم جا کے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے پروکیور کر سکیں, تاکہ یہ جو ہے ہمیں ایک مکس آف ویکسین لگانا پڑے گا. یہ جو ہے یہی ہے مسئلہ, کیونکہ ایک ویکسین جو ہے اتنی تعداد میں نہیں ملے گی ہمیں کہ ہم پورے پاکستان میں وہ لگا سکیں. کوئی بھی ویکسین ہم اس وقت تک پروکیور کر نہیں سکتے جب تک فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو نہ کرے. ڈرافٹ میں اپروول کی ضرورت ہے. سائنوفارما کی اپروول ہو گئی ہے, اور ایسٹرازینیکا کی اس کی ایسٹرازینیکا کی بھی ہوگی, 2 کی ہوئی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ جلدی سے جلدی ویکسینز کی اپروول وہ دیکھ کے کہ ان کے ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں, سیفٹی ٹرائلز ہو چکے ہیں, سیفٹی کے اور بالکل ڈیٹا موجود ہوتا ہے ہر مینوفیکچرر کے پاس اپنی سیفٹی جو انہوں نے ٹرائلز کروائے ہوتے ہیں, ان سے وہ سیفٹی کے ٹرائلز اور اس پہ افیکٹونیس کے ٹرائلز دیکھ لیں کہ کتنی امیونٹی یا کتنا تحفظ وہ مل سکتا ہے اس ویکسین سے, وہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے ڈرافٹ جو ہے اپنا ان کو اجازت رجسٹر کر لیں, اور پھر یہ ہمارے اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی لے آتے ہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے خریدیں, یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر وہ
प्रोक्योरमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हमें दे दे और हमें भी इजाजत दे कि हम गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच कर सकें ताकि हम दीगर ममालिक की गवर्नमेंट से अप्रोच करके अपने लोगों के लिए ये वैक्सीन खरीद लें। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे वैक्सीन की खरीदो फरोख्त में और इसमें बहुत सारी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या सिंध हुकूमत इसमें जल्दबाजी करके नुकसान तो नहीं उठाएगी? देखिए, आप दूसरी दीगर ममालिक देखिए, अमेरिका जल्दबाजी कर रहा है, यूके जल्दबाजी कर रहा है, यूरोप जल्दबाजी कर रहा है, सब अफ्रीकन कंट्रीज तक भी खरीद रहे हैं। क्या हम इंडिया ने अभी शुरू कर दिया है? आप रह गए पीछे रेस में। तुर्की में शुरू हो गया है, इंडिया में कल उन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया। क्या हम बैठे रहेंगे? हम अपने देखिए, इसके और बहुत सारे ऐसा, एक तो हम ऑब्वियसली हमारे लोग मरेंगे, हमारे लोग जो है इसकी वजह से बीमार पड़ेंगे। दूसरा यह है कि आप इंटरनेशनली पढ़ाया मुल्क बन जाएंगे, एक नॉन ग्रेटिस मुल्क बन जाएंगे जहां आपका पासपोर्ट देखा जाएगा कि आपने वैक्सीन नहीं की है और आपको इजाजत नहीं मिलेगी ट्रैवलिंग की। आपको इजाजत नहीं मिलेगी कि आप दूसरे मुल्कों में जाए, क्योंकि आप जैसे पोलियो के साथ हुआ है कि पोलियो की वजह से हमें दिखाना पड़ता है कि पोलियो का सर्टिफिकेट ट्रैवलिंग से। अभी यही होगा कि आपको कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वैक्सीन का कि आपको वैक्सीनेशन लग चुकी है तो आप हमारे मुल्क में आए। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो बराए मेहरबानी अपने मुल्क में रहें। मेरा सवाल शाह साहब से है कि बताएं शाह साहब की जो वफाक की जानिब से ये अगर इसको ये कहा जाए कि वफाक की तरफ से कोताही है और जो वहाँ से ताखीर की जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और ये एक क्या रिवायत सी बन गई है, देखने में आता है कि जैसे धरनों में जाना था वहाँ पे भी जाने में देर की, उसके बाद जो है अपनी काबीना के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशियाँ शुरू हो गई, तो कैसे देखते हैं? वफाकी हुकूमत की नाअहली और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है वो सबके सामने है। अब दोबारा भी इसी तरफ हम जा रहे हैं इस वैक्सीनेशन के लिए भी। आज मैडम मिनिस्टर साहिबा और चौधरी साहब ने जो बात की वो इस अहमियत को बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीन की अब कितनी ज़्यादा अहमियत है, और जिसको ड्रैफ्ट ने अगर रिकॉग्नाइज किया है तो ज़ाहिर फेडरली इदारा है, वो उसको ओके करते हैं या एक दो और को भी किया है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो उनको तो इजाज़त होनी चाहिए ना मंगवाने की। अगर वफाकी हुकूमत खुद भी सही तरीके से ऑर्डर रिप्लेस नहीं करती, इंपोर्ट नहीं करती, तो वो कम से कम सिंध गवर्नमेंट को दे दे। यही वजह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर और हमारी मिनिस्टर हेल्थ जो है इस बात को आगे लाना चाह रही है। तो हम खुद बिल्कुल करें, हम अपनी तरक्याती अखराजात दीगर डेवलपमेंट को रोक कर भी हम इस तरफ जाएं कि अपने लोगों को बचाएं इस वैक्सीन लगा के। तो ये बात आज मैडम मिनिस्टर जो यहाँ पे आई हैं वो इस वजह से आई हैं, आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि आप भी इसमें सपोर्ट करें। ये आवाज़ वफाक तक पहुँचनी चाहिए कि अगर इश्यूज जो थे वो हमारे गले में पड़े। वीट में उन्होंने सब्सिडी देकर उसको उस वक्त एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो महंगे दामों इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी में सेम यही हुआ, जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी तो न सिर्फ इन्होंने खुद उसको वहां से मंगवाया बल्कि जो ऑयल कंपनीज थी उनको भी रोक दिया गया। एलएनजी में अब क्या हो रहा है, एलएनजी में हमें ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी पड़ रही है, हर जगह पे फंस गए हैं। पीआईए के साथ देखा क्या हुआ। तो ये आज की जो प्रेस थी मैडम मिनिस्टर साहिबा की वो बहुत अहम है कि हम इस बात की अहमियत को समझते हैं कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वैक्सीन इनको मंगानी चाहिए, नहीं तो कम से कम हमें इजाज़त दे दें कि सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ हम ये मंगा। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की कोशिश होगी कि हर शहरी को वैक्सीन लगे, क्या इतना बजट है कि हम वैक्सीन खरीद कर हर शहरी को लगा सकें? देखिए, अभी भी हम मुफ्त में कोविड का PCR टेस्ट कर रहे हैं, वो 4 से 6 हज़ार रुपए कॉस्ट करता है। हम जो है ये 2,500 की वैक्सीन या उससे कम की वैक्सीन मिल सकती है हमें। तो आप समझिए कि उसका बैलेंस के वो उसका इफेक्टिवनेस क्या है। और वैक्सीन एकदम से तो हम पूरे मुल्क में एक साल में तो पूरी नहीं लगा सकेंगे और ना ही पूरे सिंध में। हम तो एक महीने में हर महीने थोड़ा थोड़ा खर्चा करके मंगवा सकते हैं और इतने पैसे हैं। हम दीगर अखराजात हम अस्पतालों में ICUs में खर्चा कर रहे हैं, ICUs का अखराजात कम हो जाएंगे अगर हम वैक्सीन लगा देंगे।
हमारे आईसीयू जो हैं अभी 1.5 लाख रुपया पर पेशेंट पे खर्चा होता है एक आईसीयू में एक दिन का, तो हम तो मुफ्त में दे रहे हैं ना वो इलाज जो है। अब उसके एवज अगर हम अपने बच्चों लोगों को बचाओ वैक्सीन दे देंगे तो वो बचाओ तो वो तो बच जाएंगे ना पैसे। मैडम वैक्सीन को एक मिनट मैडम थोड़ा सा वैक्सीन की बात हो गई। मैडम मुझे सवाल है वहाँ का वफा की हुकूमत सिंध जो अस्पताल जेके पंहिंजे कंट्रोल हेठि आणे छॾियूं आहिनि। सेहत खाते जो इनमें छा मौक़िफ़ आहे? इहे अस्पतालूं जेके आहिनि उहे हिकु वक़्तु सिंध गवर्नमेंट जे मातहत आहिनि या वफा की हुकूमत जे मातहत थी पयूं आहिनि? जेको हुन 7 जनवरी ते नोटिफिकेशन कढियो आहे ऐं उहो नोटिफिकेशन जी कापी सिंध गवर्नमेंट जे कंहिं बि सेहत खाते जे सेक्रेटरी हुजे या चीफ सेक्रेटरी खे उनखे न मोकिली वई आहे। इन जो तव्हां ॿुधायो इन ते कहिड़ो क़दम खयो आहे ऐं छा करणु घुरिजे? देखो ये जो मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ क्योंकि सबके लिए है। ये तीनों अस्पताल जो हैं हम 18th अमेंडमेंट के तहत मैं 12 कह चुकी हूँ कि 18वीं तरमीम के तहत ये जो है ये सर्विस डिलीवरी यानी लोगों तक चीज़ें पहुँचाना, सेहत के मामले पहुँचाना, सब चीज़ें ये वफाक में नहीं होना चाहिए। ये उस जो हमने एक तरमीम की थी उसमें ये सिंध यानी प्रोविंसेस या सूबों का जो है इख्तियार है। ये तीनों अस्पताल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और जो सर्विस है वो बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही है जब से वो सिंध के हवाले हुई हैं। और इस किसी भी बहाने से अगर इन्होंने वो ले लिया है, लेना चाह रहे हैं, ऑर्डिनेंस तरतीब दे रहे हैं, मैं 2-3 चीज़ें इस ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूँ। और जो इनके पिम्स हॉस्पिटल और केपी में जो इनके हड़तालें चल रही हैं डॉक्टर्स की, उसके बारे में भी बता दूँ। ये चाह रहे हैं और वो पिम्स वाले कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि वो इन्होंने एक IMF के तहत इन्हें कहा गया है कि आप लोगों की पेंशनें बंद करें, जो आप हुकूमत पेंशनें देती है ना वो बंद कर दें। ये बहाना है कि ये अस्पतालें लेके अपनी वफाक की तो अस्पतालों में इन्होंने शुरू ही कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को और जितने भी दीगर स्टाफ है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और अस्पताल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चलाएंगे और लोगों से इन्वेस्टिगेशन के यानी जो टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री के, एक्सरे, CT स्कैन जो भी है उसके पैसे लेंगे और जो अद्वियात देते हैं उसके भी पैसे लेंगे। सिर्फ डॉक्टर आपको मुफ्त में देखेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट उसकी तनख्वाह देगी और वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होगी, उसको ना GD फंड मिलेगा ना उसको पेंशन मिलेगी। इस पे सरापा एहतजाज है पिम्स हॉस्पिटल और KP के हॉस्पिटल। वो बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन तीनों हॉस्पिटल्स के लिए जो हमारे से ले रहे हैं और उस पर भी ये अमल डालना चाह रहे हैं। अभी आपको पता है NICVD में महंगे से महंगी सर्जरी मुफ्त में होती है। अब ये अगर वफाक ले लेगा ना सिर्फ उसके जो अमला है वो उनके इसका अब बुरा असर पड़ेगा, अगर पेंशन नहीं मिलेगी और GD फंड नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारे वैसे ही मारे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आम जो अवाम है उनको पैसे भरने पड़ेंगे अपना इलाज कराने के लिए। अभी आप सोचें कि एक गरीब आदमी उसके पास इतनी आमदनी या इतने पैसे ही नहीं होते कि वो 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 6 लाख का इलाज करवा सके कार्डियक का। तो वो ये जो है और उन्होंने ये शोषण छोड़ा हुआ है जो ये इनका जो है सेहत कार्ड कवर कुछ अमाउंट है उसके अंदर बुक्सेस और वो सिर्फ है सेहत कार्ड में बुक्सेस जो अमाउंट है वो सिर्फ उस इलाज के लिए जो इन सर्विस यानी जो दाखिल होके इंसान करे। डायबिटीज का इलाज पूरी जो जिंदगी में चलता है उसकी जो अद्वियात हैं वो महंगी हैं, वो मुफ्त में नहीं मिलती इस सेहत कार्ड पे। इस सेहत कार्ड पे वो मिलती ही नहीं है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसकी अद्वियात नहीं मिलती। तो ये सेहत कार्ड का शोषण छोड़ा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों को वो जो है बेहतर उनकी जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को बेहतर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास सारे पैसे चले जाएंगे। पब्लिक जो सेक्टर है, जो एक्चुअल सोशल सर्विसेज का सेक्टर है, जो हम बिलीव करते हैं, पीपल्स पार्टी यकीन करती है कि हमें आवाम को मुफ्त में सेहत, एजुकेशन और इसकी सहूलतें देनी चाहिए जो सोशल सेक्टर की चीजें हैं। लेकिन ये जो है उसमें
जो है ये एक सोशल स्टेट पे बजाय ये एक कैपिटलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, और कैपिटलिस्ट स्टेट भी ऐसी जो बिल्कुल अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेगी। तो ये मेरा बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस पे कि ये 3 अस्पतालें वफाक में नहीं जानी चाहिए। अब तक उन्होंने हमारे से रिजू नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टर्स जो हैं और सीईओ जो हैं उन अस्पतालों के उनको खत लिखे, और वो जो है वो परेशान है, वो उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हम वफाक के पास हैं या हम सूबे के पास है। पैसे सूबे अभी दे रहा है, अब तक इस पूरे साल में पैसे सूबे ने दिए हैं। अभी ये इसका जो है, एक तो ये हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पे रिव्यू पिटिशन डाला हुआ है, वो रिव्यू पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट में मेरा इल्तिजा है जजेस से कि आप देखें क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या हो रहा है इस सेहत के खाते में, क्या कर रहे हैं आप। प्लीज काइंडली इस पे हमें अस्पताल वापस करें, और प्रोविंसेस जो है बहुत बेहतर तरीके से, और हमने डबल ट्रिपल उसके जो है अखराजात हमने पैसे रखे हुए हैं उसके लिए, और वो हम जो है चलाने के काबिल हैं, और वो चलाते रहेंगे खुश असलूबी के साथ। लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन ये बताएगा, आपने कहा कि वायरस तेजी से तब्दील हो रहा है, तो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, सिंध में कैसी सूरत हाल है, कितनी शिद्दत से फैल रहा है वायरस, और इस सूरत हाल में अब मंडे से तमाम तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, तो वो क्या समझती हैं? मैडम इसमें ये भी शामिल है कि कराची में शराब ज्यादा दीगर शहरों में मुकाबले नहीं, मैं बता दूं तमाम तालीमी इदारे नहीं खुल रहे हैं। उसकी एक मीटिंग हुई थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो जो है वो चाह रहे हैं 18 से सिर्फ 9th और 10th जिनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो क्लासेस शुरू हो जाए, और वो क्लासेस भी और हाफ 50% करके एक दिन में 50% बचे आएंगे। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक आपकी जो है इन्फेक्टिविटी रेट, जो फैलने का जो है परसेंटेज जो शरह है, उससे 3% से कमी नहीं आ जाती, आपको नहीं खोलने चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन क्योंकि मौक़िफ़ यही था कि 9th और 10th के एग्जाम बहुत खर्च हो रहा है बच्चों का, तो और आप देखें कराची और हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि कराची हैदराबाद में फैलाव बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अभी बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। पहले हमारा 300-400 के ऊपर पहुँच गया था, फिर जो इन्फेक्टिविटी सिंध में थी वो 900-800 पे भी आ गई थी, अभी फिर दोबारा 1000-1200 पे पहुँच रहा है, और ये आस्ते आस्ते बढ़ के 4000 तक भी पहुँच सकता है, और अमवात भी इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप जो है बच्चे जो हैं एक जगह बैठते हैं, आप इस कमरे में बैठे हुए ना, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी इसमें हो सकती है, क्योंकि बच्चे 4-6 घंटे स्कूल में बैठे हुए होते हैं एक बंद कमरे में, और वहाँ फैलाव ज्यादा हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि अभी शॉपिंग सेंटर्स पे बच्चे जाते हैं, पार्क्स में बच्चे जाते हैं, पार्क्स खुले हुए हैं, खुला आसमान के नीचे, उसमें इतना फैलाव नहीं होता, और 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पार्क में जाएंगे ना, या शॉपिंग करने भी घंटे के लिए जाएंगे ना। लेकिन आप स्कूल में 6 घंटे 4 घंटे बैठे रहेंगे बच्चे, फैलाव, और बंद कमरे में फैलाव ज्यादा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूलों की जो है उसकी तरफ जरा बहुत गौर और फिक्र से खोलने का वो है।